یسوع مسیح کے بابرکت ازلی ابدی جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی بے حد شکر گزاری اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے حضور کے اندر دن بدن اپنے کام کے اندر، اس کے کام کے اندر جو بھی باتیں آتی ہیں، سازوں کے وسیلہ سے، پرستش کے وسیلہ سے، میٹنگ ہولڈ کرنے کے وسیلہ سے، اور پھر بہنوں اور بچوں کو پرستش کے اندر ابھارنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ترقی اور سرفرازی دیتا جا رہا ہے۔ تو شکر گزاری ہے خدا کی کہ آج خدا کی یقیناً خدا کے روح کی تقویت ہر ایک کے اوپر ہے، اور خدا ان کو چھپائے ہوئے ہے، اور اپنے دن بدن ان آوازوں کو، ان گلوں کو جو پہلے شروع میں شاید بولتے تھے تو یہ سوچتے ہوں گے کہ میں پرستش کے لیے نہیں بنا، پہلے وہ خیال کرتے ہوں گے کہ میرا گلا پرستش کے لیے نہیں بنا، لیکن آج چلتے چلتے خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی آواز ہے، کیسی آواز ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ساری جماعت کی آواز ایک ہی ہے اور خوبصورت طریقے سے پرستش ہو رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہی وہ باتیں ہیں کہ خدا اپنے رستے، اپنے راہوں پر اپنے لوگوں کو چلاتے چلاتے کامل اور سرفراز کر کے اس منزل تک لے جاتا ہے جو اس نے آخر کو ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پچھلے کلام کے اندر، 2-3 کلام کے اندر ہم خدمت کے وسیلہ سے سیکھ چکے ہیں، اور کل کے میسج میں ہم نے سیکھا کہ مقابلہ کرنے کی تیاری میں کیا کچھ کرنا ہے، اور مقابلے کی تیاری کرنے کے بعد جب میدان کے اندر اترنا ہے تو مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور پھر جب مقابلہ کیا کرنا ہے تو کون سی تکنیکیں اور کون سے حربے استعمال کرنے ہیں، اور پھر جب روحانی حالت ہے تو روحانی حالت کے اندر مقابلہ کرنا ہے تو وہ ہم نے اپنی حالت کے نہیں، اپنی قوت سے نہیں، اپنے زور بازو سے نہیں، بلکہ اپنے خدا کے زور بازو سے اور اپنے خدا کی قوت سے کرنا ہے جو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم پھر کلام اقدس کو اسی حوالے سے سیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے رستے پر، خدا کی رستوں کو عبور کرنے کے لیے، خدا کے رستوں پر پاسداری وفاداری سے چلنے کے لیے ان پر کیسے ہمیں عمل کرنا ہے، اور کیسے چلنا ہے، اور کیسے دوڑنا ہے، اور کیسے جیتنا ہے۔ آئیے ہم کلام اقدس میں سے پولس رسول کا خط ہے عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، 12واں باب اور اس کی پہلی 5 آیتوں کو کلام اقدس میں سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ جی، خداوند کے پوتر کلام میں یوں مرقوم ہے، اور جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو۔ آمین۔ کلام اقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے، کھولے اور غور کیے جانے پر خدا کی برکت ہے۔ آمین۔ خدا کی شکر گزاری۔ عزیزو، بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر خدا کا بندہ یہ بات بیان کرتا ہے، پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں
आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। जो दौड़ने के लिए हमें ट्रैक दिया गया है और जो रास्ता हमें अबूर करने के लिए दिया गया है, जो रास्ता हमें दिया गया कि इस पर दौड़ो और इस पर ऐसे दौड़ो कि सब्र के साथ। अब ये बात जो है यहाँ पर हमें इस बात में तकवीर देती है कि खुदा का बंदा कहता है जब ऐसा बड़ा गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है, ये बड़ी एक तसल्ली है, ये एक खुशाइंद बात है ईमानदारों के लिए और ईमानदार रास्तबाज बहन के लिए, भाई के लिए, मसीही के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कुव्वत बख्श बात है कि गवाहों का बादल यानी रूह का बादल और रूह की हजूरी और रूह का मसा हमें 24 घंटे घेरे हुए है। और अगर ऐसा है, वो रूह का बादल हमें घेरे हुए है, हमें पनाह में लिए हुए है, तो फिर हम क्या करें? आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। खुदा का बंदा यहाँ पर वार्निंग भी दे रहा है। दौड़ना तो है, उस ट्रैक पर चलना तो है, उस मंजिल पर, उस ट्रैक पर चलते चलते उस मंजिल को हासिल तो करना है, लेकिन एक वार्निंग भी है कि गुनाह जो है वो बड़ी आसानी से हमें उलझा लेता है। इस रास्ते पर चलते चलते, इस रास्ते पर कदम बढ़ाते बढ़ाते हमारे आगे इब्लीस गुनाह का बड़ा जाल बिछाएगा और वो अपने इस जाल के वसीला से हमें गिराने और हमें उलझाने और हमें पस्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन खुदा का बंदा वार्न करता है यहाँ पर कि हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके। अब हमने उसको जब देख लेना है, उसको जब पा लेना है, वो जब हमारे कदमों के सामने आ जाएगा, हमारे रस्तों के सामने, हमारी नज़रों के सामने आ जाएगा, तो हमने उस पर फोकस नहीं करना, हमने उस पर ध्यान नहीं लगाना, बल्कि उसको दूर कर देना है। उसको अपने हाथों से, अपने ज़ोर से, उस ज़ोर से जो हमें रूह के वसीला से मिल रहा है, उससे उसको दूर करके अपने उस दरपेश रास्ता को, उस रास्ता को जो हमें मिला हुआ है, उस पर कैसे चलना है? सब्र से। अब होता क्या, जब बहनें और भाई और कलीसिया के लोग खुदा में नए नए आते हैं तो उनको दौड़ने और बड़ी जल्दी दौड़ने का बहुत शौक होता है कि हम जल्दी से बस ये कर लें, जल्दी से बस वो गांव ले लें, जल्दी से बस ये ज़िला ले लें, जल्दी से बस इतने गांव आ जाएं, जल्दी से बस ये चर्च हो जाए, जल्दी से बस मैं रूल कुदस ले लूँ, जल्दी से बस मैं मौज़े करना शुरू हो जाऊँ, जल्दी से बस मैं एवेंजलिज्म करना शुरू हो जाऊँ, जल्दी से बस मैं रूहों को जीतना शुरू हो जाऊँ। लेकिन खुदा का बंदा कहता है इस दौड़ के अंदर बहुत सारी दुश्वारियाँ और रुकावटें और बहुत सारी बंदिशें आएंगी। और एक रास्ता ऐसा होता है कि जिसके ऊपर रुकावटें, बंदिशें होती हैं, ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, और अगर हम उस रास्ते पर सब्र से नहीं दौड़ेंगे तो मुंह के बाल के नीचे गिर पड़ेंगे। मेरे जीजो, आज जिस जगह पर खुदा ने मुझे खड़ा किया हुआ है और आज जिस मकाम पर मैं आपके सामने एक टीम की शक्ल में रोज़ आपसे मिलता हूँ, रोज़ कलाम खुदा करता है, रोज़ हमें खुदा सिखाता है हमें कैसे चलना है, रूह के वसीला से मुकाशफाती कलाम हमें रोज़ दिया जा रहा है। इस जगह को और इस मकाम को पाने के लिए, हासिल करने के लिए मुझे 11 साल लग गए। आज से 11 साल पहले मैंने इस सफ़र को हासिल करने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे, इस रास्ते पर चलना शुरू हुआ था। तो मेरे जीजो 12वां साल है। 12 साल के बाद आज कहीं जाकर खुदा ने ये रास्ता दिखाया कि दर हकीकत तेरा चलने का रास्ता ये है। तो आज हम बड़े बेताब हो जाते हैं, हम बड़े
अग्रेसिव हो जाते हैं कि मैंने जल्दी से ये भी कर लेना, वो भी कर लेना। लेकिन पौलुस रसूल कहता है ये रास्ता ऐसा है कि इस पर बड़ी एहतियात के साथ बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ कर कदम बढ़ाना है, और इस पर चलने के लिए हमें ध्यान रखना है, हमें इर्द गिर्द देखते रहना है और अपने आप को चेक करते रहना है कि जो ट्रैक मुझे दौड़ने और चलने के लिए दिया गया था, क्या मैं आज भी उसी पर कायम हूँ या मैं भटक गया हूँ, या मैंने किसी दूसरे ट्रैक को हासिल कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रैक मुझे चलने और दौड़ने के लिए दिया गया था, जो मुझे अबूर करने के लिए दिया गया था, वो कहीं और छोड़ रहा हूँ और मैं किसी और रास्ते पर जा रहा हूँ। ये बात हमें हमेशा चेक करते रहना है। वो वार्निंग दे रहा है कि हमेशा इस ख्याल में रहना है, देखते रहना, इर्द गिर्द निगाह दोहराते रहना है, क्या ये ट्रैक वही है, क्या ये रास्ता वही है जो मुझे दौड़ने और मुझको चलने के लिए दिया गया। मेरे जो बहुत सारे बहन भाई जो रास्ता, जो रास्तबाजी की राह उनको दी जाती है चलने और दौड़ने के लिए, वो उनको खुदा की मर्जी को पीछे करते हुए, खुदा की मर्जी को इग्नोर करते हुए उस रास्ते को छोड़कर किसी और ही ट्रैक पर चले जाते हैं। और जब वो उस ट्रैक पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, तब जाकर उनकी आंखें खुलती हैं तो उनको पता चलता है कि दर हकीकत जो रास्ता मुझे दिया गया था चलने के लिए, ये रास्ता तो है ही नहीं। जब उनको होश आती है तो उनको पता चलता है कि मैं तो किसी और ही रास्ते पर हूँ। तो पौलुस रसूल कहता है कि बड़े ध्यान के साथ सोच समझ कर, जो गुनाह हमें आसानी से उलझा लेता है, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें गुमान भी नहीं होगा, हमारी सोच में भी नहीं होगा, वो अपने ऐसे बहकावे और छलावे से और अपनी बातों से हमारे रास्ते को ऐसे बदल डालेगा, हमें पता भी नहीं होगा कि वो रास्ता किधर आ गया और हम किधर जा रहे हैं। तो दौड़ना कैसे है? सब्र के साथ। कलाम अक़दस में लिखा, कल भी हम इस आयत को पढ़ रहे थे, खुदावन के हाथ के नीचे फरोतनी से रह तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। हौसला रख, सब्र रख, इंतजार कर, उसने तेरे लिए प्लान रखा हुआ। वो प्लान बना देता है, वो रास्ते बना देता है, वो सारे काम सेटअप कर देता है, लेकिन वक्त जब उसका आता है, उस ज़िंदगी का, उस भाई का, उस शख्स का, उस मसीही ख़ानदान का, उस शख्सियत का, तो वो उस वक्त के ऊपर उस पर उजागर करता है कि तेरा रास्ता ये है। ट्रैक वो पहले से तैयार कर देता है। तो मेरे जीजो पौलुस रसूल कहता है, आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके इस दौड़ में सब्र से दौड़े, जो हमें दरपेश है, जो हमें दिया गया है, जो ट्रैक हमें मिला हुआ है। और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ईमान के, अगर इस रास्ते पर चलना है, इस ट्रैक पर कायम रहना है, अब अपनी सोच से और अपनी कावज से और अपनी अकल से हम इस रास्ते पर कायम नहीं रह सकते जब तक कि खुदा की तरफ से हमें नसीहत ना मिले, खुदा की तरफ से हमें गाइडेंस ना मिले, खुदा की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन ना मिले, हदायत ना मिले कि तू किस तरफ जा रहा है। और कहता है कि अब अगर ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु मसीह पर नज़रें नहीं लगी हुई, तुम्हारी आंखें उस पर नहीं है, तुम्हारी निगाह उस मंजिल पर नहीं है, तो तुम भटक सकते हो। अब क्या है, इस रास्ते पर चलने के लिए, इस ट्रैक पर हमेशा सीधा दौड़ने के लिए कामिल करने वाले ईमान के बानी यीशु मसीह को तकते रहोगे तो फिर इस ट्रैक पर सीधे रहोगे, वरना भटक जाओगे, वरना किसी और रास्ते पर चले जाओगे। असूल ये है, हम देखते हैं कि जो बड़े रोड होते हैं, जो हाईवे होती है, जो मोटरवे होती है, जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर हदायतें लिखी हुई होती हैं।
और वो बार बार कहते हैं कि आप अपनी लेन में रहें, जिस लेन पे आपको मोटरसाइकिल चलानी है आप उसी में रहें। ये साथ वाली लेन कार की है, उससे साथ वाली लेन जो है वो बड़ी गाड़ियों की है। आपने अपनी लेन चेंज नहीं करनी। अगर आप लेन चेंज करेंगे तो फिर आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। अगर आप अपने ट्रैक को छोड़कर दूसरे ट्रैक पर चले जाएंगे तो बड़ी गाड़ियां आपको कुचल कर तहस नहस करके गुजर जाएंगी। और लिखा हुआ था कि आपकी हद स्पीड 60 किलोमीटर है, आपने इससे तजावज़ नहीं करना। आपकी हद स्पीड 50 किलोमीटर है। और जहाँ पर आबादी आती है वहाँ पर लिखा होता है ये आबादी का इलाका है, यहाँ पर आपकी रफ्तार 20 किलोमीटर होनी चाहिए। वो बार बार हर एक जगह पर, हर एक मोड़ पर बताते रहते हैं कि आपकी रफ्तार ये होनी चाहिए, आपका ट्रैक ये है, आपके इस ट्रैक से आपने हटना नहीं है, वरना आपके लिए खतरा है, वरना आप हादसे का शिकार हो सकते हैं, वरना आपकी जान जा सकती है, वरना आप मर सकते हैं। तो यहाँ पर पौलुस रसूल भी दर हकीकत यही बात बता रहा है कि वो कहता है इस रास्ते पर चलने के लिए, कामिल रहने के लिए और इस रास्ते पर कायम रहने के लिए ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहना है। हमारी नज़र उस पर रहनी चाहिए, हमारी नज़र उसके चेहरे पर लगी रहनी चाहिए। फिर हम अपने ट्रैक से कभी नहीं हटेंगे और अपने रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे और नुकसान का बायस नहीं होगा। तो इस रास्ते पर क्या आएगा? गुनाह, बहकावा, छलावा, बड़ा कुछ आपके सामने आएगा, लेकिन आपने रूह के जोर से उसको पीछे करते हुए अपने ट्रैक पर चलते रहना। मेरे चीज़ों, एक दफ़ा कश्ती के अंदर शागिर्द बैठे हुए, हम भाई शमसून वगैरह ये सब पहले भी इस बात को कल कर रहे थे। सब शागिर्द कश्ती में के अंदर बैठे हुए हैं और कश्ती जो है वो झील के अंदर है और दूर से उनको कोई आते हुए दिखाई देता है और जब करीब आते हैं, वाज़ेह तौर पर देख लेते हैं, तो कहते हैं ये तो रबी है, हमारा उस्ताद है, ये तो यीशु मसीह है। और पतरस ने जब देखा कि यीशु मसीह पाँव के वसीला से अब वो पानी है और पानी के ऊपर चलते चलते कश्ती की तरफ आ रहा है, तो पतरस के दिल में खास जागी। पतरस ने कहा कि क्या मैं भी आ जाऊं, जैसे तू चल रहा है मैं भी चलना चाहता हूं। अब देखें कि वो कह रहा है कि जैसे तू चल रहा है मैं चाहता हूं कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चलूं। अब जैसे यीशु मसीह चल गया, जैसे यीशु मसीह रास्तबाजी को पूरा कर गया, जैसे यीशु मसीह कुर्बानी दे गया, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता तैयार कर गया, हम उस तरह नहीं चल पाते और ना चल पाएंगे। और वो कहता है कि आजा, अगर तू चलना चाहता है तो आ जाओ। यीशु मसीह आज भी ईमानदारों से कहता है, यीशु मसीह आज भी बहनों भाइयों से कहता है, आज भी रास्तबाजों से कहता है कि अगर तू मेरी मानद बनना चाहता है, मेरी मानद काम करना चाहता है, मेरी मानद सारे कामों को अंजाम देना चाहता है, तू चाहता है कि अगर मेरी मानद तुझसे मौजूद हो तो आ, तू भी चल के नज़ारा करके देख ले। लेकिन उसके अंदर भी असूल आ गया। पतरस ने जब यीशु मसीह की तरफ देखा तो पानी पर चलता जा रहा था, उसने कश्ती से अपना पाँव बाहर निकाला, वो डूबा नहीं है, यीशु मसीह पर नजरें लगाई हुई हैं और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उसने सोचा कि मैं तो चलता जा रहा हूँ, मेरे पाँव डूब नहीं रहे, मैं पानी के अंदर नहीं जा रहा। जब उसने ऐसा सोचा तो उसने फौरन अपने पाँव की तरफ देखा और लिखा कि उसी घड़ी वो पानी के अंदर चला, डूबना शुरू हो गया और यीशु मसीह ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, ऊपर उठा लिया। आज भी एक ईमानदार रास्तबाज मसीही जो कोई उसका शागिर्द है, अगर अपनी आंखें यीशु मसीह से हटाकर दुनियादारी के, जैसे हमने कल सीखा कि दुनियादारी से दोस्ती खुदा के साथ दुश्मनी है, और अगर हम अपनी निगाहें, अपना फोकस, अपना ध्यान यीशु मसीह से हटाकर दुनिया के ऊपर लगा लेते हैं तो हम गिर जाते हैं, हम डूबना शुरू हो जाते हैं, हम गोते खाना शुरू हो जाते हैं। और फिर भी अगर हमारा फोकस यीशु मसीह पर रहे तो फिर वो फौरन से आकर हाथ पकड़कर ऊपर उठा लेता। एक सर्कस के अंदर एक शख्स को इंटरव्यू के अंदर पूछा गया, वो क्या करता था कि एक रस्सा है और रस्से के ऊपर साइकिल चला रहा है, एक रस्से के ऊपर वो साइकिल चला रहा है और ना वो गिरता है, वो बल्कि बड़े अजीब अजीब करतब करता है। कभी साइकिल को ऊपर उठा लेता है एक पहिए को, कभी पीछे वाले को उठा लेता है, लेकिन चलता रस्से पर, रस्से के ऊपर साइकिल चला रहा है। बड़ा अजीब मंजर है, लोग देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हो क्या बात है इस बंदे की, तालियां शोर मच रहे हैं।
सर्कस खत्म हुई तो एक बंदे ने पूछा ये कैसे तू कर लेता है, कैसे इस रस्ते को एक ऊपर साइकिल को चला लेता है, बड़ा तेरा ये करता, बड़ा हैरान को मैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, दाद दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम यार, ये रस्ते पर चल कैसे लेता है, साइकिल कैसे चला लेता है। सड़कों पर लोगों से साइकिल सीधी नहीं चलती, मोटरसाइकिल सीधी नहीं चलती, बाद दफा वो सीधी चलाते चलाते किसी को जाकर ठोक देती। तो कहते हैं कैसे कर लेता है, कहता है असल में हकीकत ये है कि लोग बेशक तालियां बजा रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, वो मेरे लिए दाद दे रहे होते हैं, लेकिन मैं अपना ही निगाह, अपनी नजरें उस जगह पर लगाता हूँ जिस तक मुझे साइकिल चलाकर उस जगह पर पहुँचना है। मैं अपनी नजरें उस जगह पर लगा कर रखता हूँ जो मंजिल मैंने तय करके रस्ते पर से चलकर उस जगह पर पहुँचना है। मेरी नजरें उस पर रहती हैं, तालियां बजती रहेंगी, शोर मचता रहेगा, लेकिन मैं अपना ध्यान कभी नहीं भटकाता। मैं उस जगह को देखता हूँ जहाँ पर मैंने अपनी साइकिल को लेकर जाना होता, मैं नहीं करता। ये मसीही खानदान के लिए, मसीही ज़िंदगी के लिए, बहनों और भाइयों, ईमानदारों, रास्तबाजों के लिए एक बड़ी और ज़बरदस्त नसीहत है। जब हम अपनी निगाहें इस ईमानदारी और रास्तबाजी और इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान सीधा उस मंजिल की तरफ, जो मंजिल यीशु मसीह पौलुस रसूल तो कहता है कि मैं अपनी मंजिल की तरफ, उस निशान की तरफ दौड़े जाता हूँ जो मुझे दिया गया। मैंने उस निशान को हासिल करना है। मैं इर्द गिर्द नहीं देखता, दुनिया की चीज़ों को ख्याल में नहीं रहता, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें मेरे नुकसान का बायस है। हालेलुया। मैं अपनी मंजिल, अपने कामिल करने वाले ईमान के बानी यीशु मसीह को तकता रहता हूँ। मेरी मंजिल वो है, मेरा रास्ता वो है, मैंने उस तक पहुँचना है। अर्नेस्ट मल बड़ा ज़बरदस्त गीत गाया करते थे, आज भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो नहीं है लेकिन उनकी ज़बरदस्त गीत वो मौजूद है। कहता है कि यीशु मेरी आंखों में आ, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँ और तुझे जाने ना दूँ। उसके कहने का मतलब है आंखों को बंद कर लूं और यीशु तुझे जाने ना दूं। मेरी आंखों के अंदर तू रहे, तेरी तस्वीर हमेशा मेरी आंखों के अंदर चलती रहे, मेरी निगाह दुनिया की तरफ ना लग जाए, मेरी दोस्ती दुनिया के साथ ना हो जाए, मेरा ध्यान किसी और तरफ ना चला जाए, मेरा ध्यान तेरी आंखों, तेरे चेहरे की तरफ लगा रहे, मेरा ध्यान तेरे चेहरे पर अटका रहे, मैं तेरी तस्वीर को देखता रहूं, तेरे चेहरे को देखता रहूंगा तो मैं अपने ट्रैक पर रहूंगा, वरना मैं भटक जाऊंगा। काश तू मेरी आंखों के अंदर आ जाए, मैं आंखें ही बंद कर लूं, कभी ना जाने दो। तो मेरे जीजो, यहाँ पर पौलुस रसूल यही बात हमें वाज़ह तरीके से समझा रहा है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें। ये हदायत है, ये असूल है, ये कानून है, यही बेहतरीन इस्लाह है ट्रैक पर रहने के लिए, अपने रास्ते पर कायम रहने के लिए और अपनी मंजिल यीशु मसीह को पाने के लिए। यही तरीका है। इससे कोई और तरीका अपनाएंगे तो भटक जाएंगे, दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे, फना हो जाएंगे, हादसे का शिकार हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मेरे जीजो, इमसाल की किताब के 4 बाब की 12वीं आयत को देखो। जी पढ़ो। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब तू चलेगा तेरे कदम कोता ना होंगे, और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। आमीन आमीन। अब हिकमत का बादशाह सुलेमान नबी ये बात समझा रहा है, अगर तू दौड़ेगा किस जगह पर, किस ट्रैक पर, किस रास्ते पर, उस रास्ते पर जो यीशु मसीह की तरफ जाता है, जिस रास्ते की मंजिल यीशु मसीह है, कोई और मंजिल नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। अगर तू उस रास्ते पर दौड़ेगा, जब तू चलेगा तो तेरे कदम कुता ना होंगे, तू ठेस ना खाएगा, तू ठोकर नहीं खाएगा, तू गिरेगा नहीं, तू मुंह के बल नहीं गिरेगा, क्योंकि तू जिस
उसकी तरफ दौड़ रहा है, उस तेरी मंजिल का निशान यीशु मसीह है, और तेरे कदम कोताह ना होंगे, और अगर तू दौड़ेगा तो वो ठोकर ना खाएगा। तेरी स्पीड जितनी मर्जी बढ़ जाएगी, वहाँ पर लिखा होगा तेरी हद स्पीड रोड पर 60 किलोमीटर है, तेरी हद स्पीड 40 किलोमीटर है, तो फिर तू इस रास्ते पर यीशु मसीह को तकते हुए अगर तेरी स्पीड 100 किलोमीटर का भी हो जाएगी तो फिर ना तो ठोकर खाएगा, तेरे कदम कोताह ना होंगे, फिर तो गिरेगा नहीं, क्योंकि तेरी मंजिल और तेरा निशान यीशु मसीह है। मेरे जीजो, पहले बाब की 16वीं आयत में मिसाल के लिखा हुआ, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। अब वही बात जो हमें पहले बताई गई है कि इस रास्ते के अंदर बहुत सारी रुकावटें, बंदिशें, नाकामियाँ आपका सामना करेंगी, लेकिन हमने इनको पीछे करते हुए, रूह के ज़ोर से पीछे करते हुए, धकेलते हुए गुजरना। और यहाँ कहता है कि उनके कदम, क्योंकि उनके पाँव बदी करने की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। किन के कदम? शरीरों के कदम। अब जब दौड़ रहे हैं तो ये शरीरों के वसीला से, शैतान के वसीला से, इब्लीस के वसीला से बहुत सारी रुकावटें आपका सामना करेंगे, लेकिन उन रुकावटों का सामना अगर हम अपने जोर से करेंगे, अपनी अकल से करेंगे, अपने जोर से, जोरे बाजू से करना चाहेंगे, तो फिर मेरे जीरो हम उन रुकावटों को कभी पार नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इन रुकावटों को यीशु मसीह के वसीला से, उसके ज़ोर के वसीला से, उसकी पावर, उसकी नाइंटी के वसीला से, उसके रूह की हदायत के वसीला से पार करते जाएंगे, तो ये रुकावटें ना सिर्फ हम अबूर कर पाएंगे, इनको पार करके पाएंगे, बल्कि हम इनको पार करते करते अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और पौलुस रसूल कहता है कि दौड़ो, ज़रूर दौड़ो, और दौड़ो ऐसे कि जीतो। जीतने के लिए दौड़ो, और जीतने के लिए ज़रूरी है कि एक मंजिल का निशान हो जहाँ तक हमने पहुँचना है, और वो निशान कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदामद मनजी यीशु मसीह है। हमने उसकी तरफ दौड़ना है, उस निशान को लेना है, उस मंजिल तक जाना है, और चलने का रास्ता वो हमें बता रहा है कि हमारा रास्ता कौन सा है। ये ना हो कि हम उसकी सूरत को पीछे हटाकर, दुनिया की सूरत को देखकर, दुनिया के हम शक्ल बनकर किसी और ट्रैक पर चले जाएं और नुकसान का बायस हो जाए। आमीन। आए आंखों को बंद करें और आज के सुने गए, हासिल किए गए कलाम के मुताबिक ही जैसा हमने सुना है, अपने लिए जोर, हदायत, सीधा रास्ता और मंजिल जो हमारा कामिल करने वाला और ईमान का बानी यीशु मसीह है, उसको देखते रहें, उसको तकते रहें। जैसा पतरस ने उसको देखा और पानी पर चलना शुरू हो गया, और जब उसने अपनी निगाहें हटा ली तो वो डूबने लगा। आज भी ऐसा ही होता है, जब हम खुदा से, यीशु मसीह से अपनी नज़रें हटा लेते हैं, दुनियादारी पर लगा लेते हैं, दुनिया पर देखना शुरू हो जाते हैं, तो हम डूबना शुरू हो जाते हैं। मेरे जीजों, आज के कलाम के वसीला से, सुनी गई बातों के वसीला से अपने लिए, अपनी रास्तबाजी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए और इस रास्ते पर साबित कदम रहने के लिए यीशु मसीह से जोर और कुव्वत मांगना शुरू करें। हालेलुया। लब खोलेंगे, सब लब खोलेंगे। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से जितनी जिंदगियां, जितने घराने, जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, कादिर तुल खुदा तेरा कलाम उन जिंदगियों, उन घरानों को बरकत, सलामती इनायत करे, और आज के कलाम के सुनने के वसीला से जिंदा खुदा उनकी ज़िंदगियों में ताजगी आए, तेरी रास्तबाजी, तेरी मजबूती, तेरा ईमान आए, और कादिर मुतल्लिक खुदा ये भी सुनने के वसीला से अपने रास्ते को पहचान लें, अपनी राह को पहचान लें, और अपनी मंजिल को पहचान लें कि हमारी दौड़ कौन सी है, हमने किस मंजिल पर पहुंचना है, हमारी मंजिल कौन है। हमारी मंजिल खुदा में यीशु मसीह तू है, और हम जान जाएं, सुनने वाले भी जान जाएं, बरकत पा जाएं, और अपने रास्ते को पहचान लें, अपनी मंजिल को पहचान लें, और अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना शुरू कर दें। तेरे कलाम की आज का कलाम खुदावंद तेरे लोगों को जाने में चलने की कुव्वत हासिल हुई, ये मुसलसल हासिल होती रहे, और खुदावंद हम आगे बढ़ते रहे, और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। बेशक खुदावंद अपने कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहे,
और इस दौड़ में ऐसे दौड़े कि जीते और खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। अब कादिर पाक अपने लोगों की उन तमाम रविशों को जो तुझे पसंद नहीं और उन तमाम आदातों को जो तुझे नहीं पसंद, यीशु मसीह के नाम से खुदावन हमारी जिंदगी से दूर कर। खुदावन तूने अपना कलाम, पवित्र कलाम हमारी जिंदगी में बोया, तो ये खुदावन बात बात को बूंदे बूंदे को चीरता है। खुदावन बड़ा जलाली का खुदावन तेरे नाम का झंडा हमारी जिंदगी में गाड़ दे, ताकि हमारा चलना फिरना और उठना बैठना तेरी बात के मुताबिक हो। ऐ खुदावन आज तेरे हुजूर झुकी तमाम जानों को इस कलाम के वसीला से जोर मिले और खुदावन सब खुदावन तुझे तकते रहे और तेरी जानब पढ़ते रहे। ऐ लश्करों के खुदा, हम में से कोई भी सुस्ताने ना पाए, हम में से कोई भी बेदिल ना हो, हम में से कोई भी खुदावंद अपनी मर्जी से चलने वाला ना हो, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम ही को हम अपनी आंखों के सामने रखें और उसी की रहनुमाई में चलें और खुदावंद ताबेदारी करके खुदावंद तेरे रूह के फलों को हासिल करें, रूह की नेमतों को पाएं, ताकि जब हम भी यीशु के जहाँ पर मौजूद हैं इस इबादत के अंदर, उन घरानों को भी बरकत देना, और जो इस कलाम को सुन रहे हैं उन घरानों को भी बरकत देना, जिंदगियों को भी बरकत देना, और कलाम के सुनने के वसीला से तमाम मुश्किलात, कमी, कमजोरियाँ, परेशानियाँ, दुख, रोग, आफतें, मुसीबतें, मौसमी सराहत, बीमारियाँ, लाचारियाँ, इब्लीस के ख्याल, मंसूबे, बंधन, इरादे यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों, घरानों से चले जाएं, खत्म हो जाएं, रिमूव हो जाएं, बस हो जाएं, खत्म हो जाएं। यीशु के नाम से घराने, जिंदगियां आजाद हो और जाएं। तौबा कर लें। और खुदावंद बेशक हम में से कोई नहीं जानता कि हमें कल जिंदगी मिलेगी या नहीं, लेकिन ईमान के वसीला से हम खुदावंद ये क्लेम करते हैं कि हम कल भी जमा होंगे और तेरे नाम को जलाल देंगे। ऐ खुदावंद, लेकिन फिर भी ये हमारी जिंदगियां तेरे हाथ में सुपुर्द है। तू खुदावंद इसकी हदों को मुकर्रर किए हुए मिन्नत करता हूँ खुदा, हम सब खुदावंद जान देने तक वफादार रहे, ताकि खुदावंद उस जिंदगी के ताज पा सके। ऐ खुदावंद, मैं मिन्नत करता हूँ अपने लोगों को इसी तरह बढ़ा और खुदावंद दुआ की हिचकिचाहट को दूर कर दे, ताकि खुदावंद यहाँ ही नहीं घरों में भी खुदावंद मौके ढूंढे, हम काम पर मौके ढूंढे तेरे कदमों में, ताकि खुदावंद तेरा आसमान खोले और वो तमाम अच्छी चीजें खुदावंद तेरे लोगों को अता हो जाए। हम खुदावंद अपने अजीजों के लिए दुआएं करें और ये तो जमात खुदावंद जो तेरे लहू से कायम हुई है, तैयार हुई है, खुदावंद तेरे लहू की बदौलत ही आगे बढ़ती है और तेरे जलाली काम, तेरे मोजज़ात, तेरे पाक खातम यीशु मसीह के नाम में ज़हूर में आए। यीशु के नाम से तेरे नाम को चला। आज का कलाम खुदावंद सबों की जिंदगियों में महफूज हो जाए और खुदावंद यीशु के नाम से ज़हन खुले और खुदावंद तुझ में कल से जब जमा हो तो खुदावंद